کہ بگڑی میری بنا دو. جس کو اپنی بگڑی بنوانی ہے وہ بولے ہم بگڑی میری بنا دو اجمیر والے خواجہ. آواز تو ہے نہیں، دیوانگی ضرور ہے. عشق نبی قلب کی گہرائیوں میں ہے اور محفل سجی میری تنہائیوں میں ہے. بگڑی میری بنا دو اجمیر والے خواجہ. بگڑی میری بنا دو اجمیر والے خواجہ. ارے بگڑی میری بنا دو اجمیر والے خواجہ. اور قسمت میری جگا دو اجمیر والے خواجہ. قسمت میری جگا دو اجمیر والے خواجہ. اب دیوانگی دیکھے کہ ہو جائے روز میرا بند آنا جانا. ارے ہو جائے روز میرا بند آنا جانا. ایک گھر وہی دلا دو اجمیر والے خواجہ. ایک گھر وہی دلا دو اجمیر والے خواجہ. ایک گھر وہی دلا دو. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک سلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. بہت اچھی بات اپنے نماز کے تعلق سے سرکار فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ. اس کے تعلق سے اپنے پوری مکمل تقریر اپنے بڑے بھائی علامہ عابد صاحب قبلہ سے سماعت کی ہے. اس غریب سے دو چار باتیں سنیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. اے محبوب آپ فرما دو، آپ سیدھے سیدھے سمجھیں کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آئے تو یہ آدم بھی، آئے تو یحییٰ بھی، آئے تو شیش بھی، آئے تو نوح بھی، آئے تو زکریا بھی، آئے تو حضرت ابراہیم بھی، آئے تو حضرت اسماعیل بھی، آئے تو داؤد بھی، آئے تو موسیٰ بھی. تو غرضے کے تمام نبی اس دنیا میں آئے، مگر لوگوں کو جب یہ پیغام دینا ہوا، جب لوگوں کو بتانا ہوا، جب لوگوں کو سمجھانا ہوا، جب لوگوں کو راہ راست پہ بلانا ہوا، تو رب نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونہ ہے. اسی قرآن میں رب آدم کا ذکر کرتا ہے، اسی قرآن میں رب زکریا کا ذکر کرتا ہے، اسی قرآن میں رب داؤد کا ذکر کرتا ہے، اسی قرآن میں رب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کرتا ہے، اسی قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس سے اپنا خلیل کہا ان کا ذکر کرتا ہے. اسی قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جنہیں ذبیح اللہ کہا جاتا ہے ان کا بھی ذکر کرتا ہے. مگر جب لوگوں کو، مگر جب محبوب کے امتیوں کو یہ بتانا مقصد ہوتا ہے، مگر جب محبوب کے امتیوں کو جب انہیں ایک آئیڈیل دینا مقصود ہوتا ہے، وہ کس کے راہ پہ چلے؟ کیا موسیٰ کے راہ پہ چلے؟ کیا زکریا کے راہ پہ چلے؟ کیا داؤد کے راہ پہ چلے؟ کیا یحییٰ کے راہ پہ چلے؟ کیا شیش کے راہ پہ چلے؟ کیا حضرت ابراہیم کی راہ پہ چلے؟ کیا اسماعیل کی راہ پہ چلے؟ کیا عیسیٰ کے راہ پہ چلے؟ تو رب کہتا ہے کسی کے راہ پہ نہ چلو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب میں تلخیوں سے جانا جاتا ہوں، میں اسی اعتبار سے سرخیوں میں رہا کرتا ہوں. چاہے آپ جس حصے گئے تو کیا کہتے ہیں، یہ تو دنیا کا رواج ہے، آپ کو ایک اپاچی دے ہی دینا چاہیے. اب اپنی بیٹی دے رہا ہے، اس کے سینے سے اس سے پوچھ اس کے سینے پہ کیا لوٹ رہی ہے، اس کے دل سے کیا گزر رہا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کی کمائی دے رہا ہے، اپنی 20 سال کی محنت و مشقت سے پالی ہوئی اس بچی کو دے رہا ہے. اس کے بعد بھی تجھے اپاچی چاہیے؟ حضرات محترم، اور یہیں تک محدود نہیں، ہم تو ہمارے یہاں جوک پائے جاتے ہیں، جوک. اگر ہم جوک سے کم نہیں،
یہ जोंक जो है ना हमारे बदन से खून उस वक्त तक चूसते हैं, उस वक्त तक चूसते हैं जब तक उन्हें मसल नहीं दिया जाता, जब तक उन्हें उनका दम नहीं निकाल दिया जाता है। बिल्कुल यही हालात हमारी हो गई है। हम लड़की वाले को इतना चूसते हैं, इतना चूसते हैं, जब तक वो टूट न जाए, वो उसी में बिल्कुल ऐठ न जाए, बिल्कुल तबाही के कगारे पे न आ जाए, उस वक्त तक उतना हम लड़की वाले को ऐठते हैं। ए जालिम जरा समझ कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा का अक़्द कैसे किया था। ए जालिम जरा समझ कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना अक़्द हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ कैसे किया था। ए जालिम जरा समझ कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमी पे बैठा के अब ये इंसान चला तो है, यहाँ से चला है क्या कह के इमाम साहब ने कहा वो उसका नाम वितिर है। वहां पहुंचने के बाद वो भूल गया, किसी शख्स ने कह दिया भाई बहुत अतर उतर लगा के आए हो, बहुत खुशबू है, तो गांव देहात के लोग कह देते हैं अतर को इतिर ही कह देते हैं। अब वो इंसान पहुंचा है तो अतर को इतिर पूछ दिया, लड़की से पूछा है कि लड़की तू बता कि इतिर की नमाज कैसे पढ़ी जाती है। अल्लाहू अकबर। लड़की का हंसना था कि सब लोग कहने लगे क्या बेहयाई है, क्या बेशर्मी है, क्या बदतमीजी है, लड़की से नमाज के ताल्लुक से पूछा जा रहा है तो लड़की हंस रही है। हजरत मोहतरम जबकि अपना गरीबान नहीं देखा, अपने दामन के दाग को नहीं देखा कि तुझे वितिर कहना चाहिए था, तू इतिर कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि लड़की हंस रही है। अब आइए थोड़ा सा अब हम लड़कियों से पूछ लेते हैं। लड़की तो कह दी अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक, घर से की पूरी दुआ पढ़ दी। मैं पूछना चाहता हूँ लड़की से इतना पूछा जाता है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोल सकते हैं, लड़की से इतना पूछा जाता है, अपने हिसाब से कुछ नहीं छोड़ा जाता, मगर कभी पलट के कह दीजिए लाल तुझे पहला कलमा सही से याद है या नहीं है। अरे मेरे लाल इमाम साहब तुझे धक्के पे धक्के मार मार के कलमा पढ़वाते हैं निकाह के वक्त, लाल तू कभी नमाज में सना पढ़ता है या नहीं। लाल इतना लाल हो जाएगा कि आपका चेहरा लाल करने पे टूट जाएगा। वो इसलिए कि आपने कभी उसे सिखाया ही नहीं, आपने कभी उसे बताया ही नहीं, आपने कभी उसे पहचानवाया ही नहीं। हजरत मुहतरम यही तक महदूद नहीं, अब आए थोड़ा सा और गौर कर ले और थोड़ा सा करीब आ जाए और एक और बारीक बात समझ लें। मेरी बातें जो है बहुत तल्ख लगती हैं और मैं तल्ख कहने का आदी हूँ, मैं अपने सारे जुमलों का जिम्मेदार हूँ, इसलिए कि मैं मिंबरे रसूल पे खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह हक गोई मेरा सेवा है। मैं जब तक जिंदगी रही मैं बोलूंगा, आप में से जो चाहें, अगर मुझ में कोई गलती है मेरे सरपरस्त है, मुझे डांट सकते हैं। मोहतरम हजरत दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम व आलिहि व बारिक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक पॉइंट की बात समझे, और हमारे यहाँ निकाह में ये जो डीजे लगा है ना, आज मैं थोड़ा सा तल्ख बोल रहा हूँ, मेरी निगाहें जिन्हें ढूंढ रही वो दिख नहीं रहे। ये जो डीजे लगा है ना, कसम खुदा की कह रहा हूँ, कोई ये कह दे कि ये डीजे सिर्फ मिलाद के लिए लगा है, मैं यहीं से उतर जाऊंगा। कोई सिर्फ ये कह दे कि सिर्फ मिलाद के लिए लगा है, आगे मैं इस पे तफसीर ही न करूंगा। आप सभी पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि मुझसे और क्या होने वाला है। मकसद सिर्फ दिखावा है कि ये डीजे सिर्फ मिलाद के लिए लगा है। अब आए थोड़ा सा और करीब हो जाएं। हजरत मोहतरम हम लड़कियों से इतना सवाल कर देते हैं कि लड़के से पूछते नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूँ वही पूछ लिया जाए, वही तुरंत पूछ लिया जाए कि मेरे लाल तू कलमा पढ़ना जानता है या नहीं। तू कलमा पढ़ना जानता है तो बता, जरा पढ़ के तो सुना दे। तेरे ससुर आए हैं, तेरे साले आए हैं, तुझे देखने वाले आए हैं, उन्हें जरा अदब से सलाम करके तो बता दे। हजरत मुहतरम मेरे साथ ऐसा मामला कई बार हो गया है, लड़के को खुद समझा के भेजा गया, बाबू मेहमान आए हैं, अदब से बाबू मेहमान आए हैं, इज्जत से। लड़का जो ही पहुंचा है और तड़प के
कहता है अस्सलाम वालेकुम, मारे खुशी के लड़का तो फूले नहीं समा रहा है कि आज तो हमने दे डाला, सबको सलाम कर दिया। मगर उलमा जो है बैठ के कह रहे हैं बाबू बैठो जरा, तुम नीचे बैठो। बैठाने के बाद पूछा, जो ही आलिम साहब ने कहा कि बाबू तुम जो सलाम किए हो ना, ये छोटी सीन से है, बड़ी शीन से नहीं है। अब लड़का इतना गुस्सा हो गया, इतना लाल पीला हो जाता है लड़का कि आपको यही मेरी तंज करनी थी, यही नुक्स निगारी करनी थी। मैं पूछना चाहता हूँ, वो आलिम गलत नहीं है, अगर वो समझा रहा है तो गलत नहीं है, मगर गलती हमारी है। वो भी कहाँ पे, वो यहाँ बैठे उसी आलिम के पास जब बच्चा छोटा था तब भेजते कि बच्चा सीख के आ कि सलाम कैसे किया जाता है, जवाब कैसे दिया जाता है। इसकी हिफाजत हम करेंगे, मस्जिदों से अपनी पेशानी को हम रंगेंगे। और यही तक महदूद नहीं, मोहतरम हजरात, उलमा की जो है कसरत है और वक्त की किल्लत है, इसलिए कि मैं कुछ ज्यादा न कह दूं, बस मेरी बात ये आखिर खत्म हो जाए। इसलिए कि अगर हम अपनी पेशानियों को सजदों से सजा लिए तो हमारा ये चमकता हुआ चेहरा देख के कोई कह सकता है कि आने वाला मुसलमान है, कामिल मोमिन है। पूछा जाएगा कैसे, तो कहा इसके चेहरे पे जो चमक है वो वजू से चमक रहा है, वो किसी क्रीम और पाउडर से नहीं चमक रहा है। हजरत मोहतरम दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम व अलैहि व बारिक सल्लम सलातुन व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मेरी आदत है मैं उसे पूरा कर दूं। लाख दुश्वार हो, आसान सफर लगता है, भरा जंगल भी अब मुझे घर लगता है, मेरे दुश्मन भी मुझे कलेजे से लगाते हैं, मेरी माँ के दुआओं का असर लगता है और दुपट्टा माँ के सर पे सूरह रहमान लगता है, गिलाफे खाना काबा का भी जुल्तान लगता है, बहारे जीनो दुनिया की तेरे कदमों से लिपटी है माँ, न हो घर में माँ तो घर कब्रिस्तान लगता है और चांद रिश्ते में नहीं लगता है मामा अपना, फिर भी बख्शेगा हर हाल में उजाला अपना। मैंने एक रोज रोते हुए पूछे थे आंसू, माँ ने मुझे तो धोया नहीं दुपट्टा अपना। और हजरत मोहतरम बहुत बुलंदी कब तलक इस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है कि मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं। मेरी माँ सजदे में रहती है और फिजा में वहशते संगो सिना के होते हुए, कलम रक्श में है आसूबे झांके होते हुए, फिजा में वहशते संगो सिना के होते हुए, कलम रक्स में है आशूबे झांके होते हुए। यहीं पे वो लोग रहते हैं जिनके सबब बुलंद जमी हुई आसमां के होते हुए। दुआ को हाथ उठाता हूँ तो लरसता हूँ मैं, कभी दुआ नहीं मांगी थी माँ के होते हुए। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुल हसना, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, कामयाबी है, कामरानी है। रब से दुआ है जो हमने बोली उसमें कोई गलती हो उसे माफ फरमाए। एक मरतबा आप लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़िए। पहले मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबू इलैहि। आप लोग कलमा शरीफ बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग वस्सलाम। करता है तो हम फैला के करते हैं, ज्यादा हम अपने आप में खुश न रहे, इसलिए कि कुछ ज्यादा हमारा जो है कि तबादला नहीं है। और हम जो है रुकने इस्लाम को समझने की जसारत करें, कोशिश करें, ताकि जो है हमारा दिल जो है ना, अगर हम जबान से सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं तो नहीं होगा। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की वो पाया। तो हम बता दें कि हम क्या चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे घर में पढ़ी लिखी बहू आ जाए। मगर याद रखो मुसलमानों, जहाँ पढ़ी लिखी बहू ढूंढते हैं वहाँ अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। दीन हमने नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को आलिम बनाओ, मैं नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को हाफिज बनाओ, मगर मैं ये जरूर कहता हूँ कि नबी करीम इरशाद फरमाते
हैं। ए लोगों, अपने बच्चे को इतना पढ़ाओ कि वो अपने ईमान की हिफाजत कर सके। जब बच्चे को इस्तिंजा लगे तो उसे पता चल सके कि मुझे खड़े होकर नहीं, ये तो यहूद नसारा का तरीका है, मुझे बैठ के इस्तिंजा करना चाहिए। जब बच्चे को प्यास लगे, जब भरे बाजार में हम कहते हैं ना, अभी कोई बीच से नारा लगा दे, नारे तकबीर से तुरंत तड़प के कहते हैं अल्लाहू अकबर। और जो ही कहा है बंदा कि गौस का दामन तो इतने जोर से कहते हैं नहीं छोड़ेंगे, जैसे मरते मर नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह करे कि न छोड़े, मगर हजरत मोहतरम गौस की जिंदगी भी तो देखे, सिर्फ दामन पकड़े और काम बेड़ा पार है। नहीं मोहतरम हजरात, उनकी जिंदगी को भी तो देखे। हम जब चलते हैं तो हम कहते हैं क्या, जब हमारा नाम होता है तो हम कहते हैं क्या, हम गौस के दीवाने हैं, हम साबिर के दीवाने हैं, हम मखदूम के दीवाने हैं, हम मोहम्मद के दीवाने हैं। मगर हजरत मोहतरम हमारा काम यहूद नसारा वाला। मस्जिदें हमसे खाली, तलखियां अब हैं, मस्जिदें हमसे खाली, मोहम्मद के दीवाने हम हैं, गौस के दीवाने हम हैं। आबादियों में इख्तिलाफ हमारे अंदर, गौस के दीवाने हम हैं। हजरत मोहतरम, ये कैसी दीवानगी है, ये कैसी मोहब्बत है जो हमें हम किनारियों पे ले जा रही है, ऐसे रास्ते पे लेके जा रही है जहां हम डूब सकते हैं, जहां हम मर सकते हैं, जहां हम बर्बाद हो सकते हैं। अब और थोड़ा सा करीब आ जाए, थोड़े से ज़हन को करीब करें। मैं एक बात आपको समझा दूं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुल हसना। रसूल की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। जब हमारा बच्चा भरे बाजार में पानी पिए तो कोई देख के ये न कहे कि पता नहीं किसका लड़का है, पता नहीं कहाँ का बच्चा है। जब हमारा बच्चा जब बाजार में पानी पिए तो वो बैठ जाए तो देखने वाला कहेगा ये मुसलमान का बच्चा है। और यही तक महदूद नहीं, ये नबी का दीवाना है। अगर उससे कोई सवाल कर दे कैसे पता चला कि उसके पानी पीने के रंग से ये पता चल गया कि वो मुसलमान का बच्चा है, तो तड़प के एक जवाब मिलेगा कि मुसलमान का बच्चा और सुन्नत के खिलाफ ये हो ही नहीं सकता। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पानी बैठ के पीना चाहिए, इसलिए वो बैठ के पी रहा। और एक मोटी बात बहुत पहले कह दी गई है, मगर एक समझ में हमारे उलमा आ रहे हैं कि हम आज अपने आप को इतना गिरा हुआ समझ लिए हैं, इतना कमजोर हो गए हैं, हम इतना नीचे चले गए हैं। हम कहते हैं नहीं कुछ नहीं लेंगे, शादी में लड़की वाले से कुछ नहीं लेंगे। और खाए होते तो आज आपका बच्चा आपको जवाब देता हुआ नजर नहीं आता। आज हम अपने आप पे इतने मगन हैं, इतने। अब एक और समझे, इमाम जो है आप अपने यहाँ हमारा जब फायदे की बात इमाम साहब करे ना, जब इमाम साहब कह रहे हैं कि देखो भाई कर्ज तो ले लिए हो मगर कर्ज को देना भी बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, लाजमी है, एकदम से जो है कि इसे कर देना चाहिए। तब जब अपने मफाद की बात आती है, जब अपने फायदे की बात आती है, जब इस्लाम और शरीयत की बात अपने मफाद में आ जाए तो तुरंत हम कहते हैं अरे मौलाना साहब 12 साल मदरसे में पढ़े हैं, क्या वो घाची में है जो उनकी बात झूठी हो सकती है, जो उनकी बात वो जो कह रहे हैं एकदम शरीयत की बात है, सच बात है। और जो ही शरीयत जो ही अपने अपोजिट आ जाए, पलट हो जाए, उल्टा हो जाए, जो ही कह दे कि साहब तुम्हारा लड़का नाचता बहुत है, तुम्हारा लड़का जो है ना अय्याश बहुत है, तुम्हारा लड़का ये जो करता है वो जो करता है, तो फिर हमारे जवाब पता है क्या निकलता है, अरे ये तो मौलाना लोग हैं, इनकी आदत है ऐसे ही बकते रहने की। कसम खुदा की याद रखो मुसलमानों कि तुम ये जो कर रहे हो, हम जो ये कर रहे हैं, हम ये जो समझते हैं कि बस इसी में कामरानी है, इसी में कामयाबी है, तो याद रखो कामयाबी कहाँ है, कामरानी कहाँ है। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। उस वक्त तक वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि कोई मुझे अपने अजीजों व कारीब से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने तमाम अहलो अयाल से ज्यादा प्यारा न समझ
ले उस वक्त तक वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। और कामयाबी की राज बता दूं तो रब तबारक व तआला आज हम बेचैन फिरते हैं, कामयाबी की राज सुनो तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों तुम कामयाबी ढूंढना चाहते हो, तुम कामरानी ढूंढना चाहते हो, तुम तकवा ढूंढना चाहते हो, तुम परहेजगारी ढूंढना चाहते हो, तुम नबी के निशानियत मतीन को ढूंढना चाहते हो, तो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों तुम जानते हो तुम्हें कामयाबी कहाँ मिलेगी, तुम्हें कामरानी कहाँ मिलेगी, तुम जद्दोजहद कहाँ करना चाहते हो। मोहतरम हजरात, रब तबारक व तआला कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को राहत मिलती है। हजरत मोहतरम जब ये सारी चीजें हमें मुयस्सर हो जाएंगी तब हमारा लाडला। अब एक और छोटी सी बात, जब लाडले की बात आ गई तो याद रखें और इसे नोट करें, बहुत ही काम की बात है। कुरान कितनी अजीम चीज है, उसे पढ़ने के लिए अब कुरान की बात आप एक समझ लें, मुझे जहन में बात आगे मैं बता दूं। कुरान लड़की को जो निकाह के बाद जब लड़की को मतलब रुखसत किया जाता है, जब लड़की की विदाई होती है तो उसे कुरान दिया जाता है। मेरे साथ ये मामला पेश आया है, कुरान देने की बात आई तो अंदर से किसी ने कहा ये कुरान है, ऊपर तो रखा है, बड़ी अजीम शान है, इसका मर्तबा बहुत ऊंचा है। इस मैंने पूछा ऊंचा कहा, बहुत ऊंचा है इसलिए हमने ऊपर रखा है। उन्होंने कहा तो फिर लड़की विदा हो रही है, लड़की तुम्हारे घर से जुदा हो रही है, तुम्हारे घर को छोड़ के जा रही है, तुम इसे दे दो। तो हजरत मोहतरम कहा इसीलिए तो निकाले हैं, लड़की को देने के लिए ही तो निकाले हैं। तो मैंने कहा किसी नौजवान को दे दो, बहुत तल्ख बोलने वाला हूं मैं, किसी नौजवान को दे दो, वो ले आके दे आएगा। हम लड़की से पूछते हैं ना बेटी कलमा पढ़ना जानती है नहीं, बेटी सना पढ़ती है या नहीं। अब ये इंसान चला तो है, यहाँ से चला है क्या कह के इमाम साहब ने कहा वो उसका नाम वितिर है। वहां पहुंचने के बाद वो भूल गया, किसी शख्स ने कह दिया भाई बहुत अतर उतर लगा के आए हो, बहुत खुशबू है, तो गांव देहात के लोग कह देते हैं अतर को इतिर ही कह देते हैं। अब वो इंसान पहुंचा है तो अतर को इतिर पूछ दिया, लड़की से पूछा है कि लड़की तू बता कि इतिर की नमाज कैसे पढ़ी जाती है। अल्लाहू अकबर। लड़की का हंसना था कि सब लोग कहने लगे क्या बेहयाई है, क्या बेशर्मी है, क्या बदतमीजी है, लड़की से नमाज के ताल्लुक से पूछा जा रहा है तो लड़की हंस रही है। हजरत मोहतरम जबकि अपना गरीबान नहीं देखा, अपने दामन के दाग को नहीं देखा कि तुझे इतिर कहना चाहिए था, तू इतिर कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि लड़की हंस रही है। अब आइए थोड़ा सा अब हम लड़कियों से पूछ लेते हैं। लड़की तो कह दी अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक, घर से की पूरी दुआ पढ़ दी। मैं पूछना चाहता हूँ लड़की से इतना पूछा जाता है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोल सकते हैं, लड़की से इतना पूछा जाता है, अपने हिसाब से कुछ नहीं छोड़ा जाता, मगर कभी पलट के कह दीजिए लाल तुझे पहला कलमा सही से याद है या नहीं। अरे मेरे लाल, इमाम साहब तुझे धक्के पे धक्के मार मार के कलमा पढ़वाते हैं निकाह के वक्त, लाल तू कभी नमाज में सना पढ़ता है या नहीं। लाल इतना लाल हो जाएगा कि आपका चेहरा लाल करने पे टूट जाएगा। वो इसलिए कि आपने कभी उसे सिखाया ही नहीं, आपने कभी उसे बताया ही नहीं, आपने कभी उसे पहचानवाया ही नहीं। हजरत मोहतरम यही तक महदूद नहीं, अब आए थोड़ा सा और गौर कर ले और थोड़े सा करीब आ जाए और एक और बारीक बात समझ लें। मेरी बातें जो है बहुत तल्ख लगती हैं और मैं तल्ख कहने का आदी हूँ, मैं अपने सारे जुमलों का जिम्मेदार हूँ, इसलिए कि मैं मिंबरे रसूल पे खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह हक गोई मेरा सेवा है। जब तक जिंदगी रही मैं बोलूंगा, आप में से जो चाहे, अगर मुझ में कोई गलती है मेरे सरपरस्त है, मुझे डांट सकते हैं। मोहतरम हजरत दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम वालिहि व बारिक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक पॉइंट की बात समझें, और हमारे यहाँ निकाह में ये जो डीजे लगा है ना, आज मैं थोड़ा सा तल्ख बोल रहा हूँ,
मेरी निगाहें जिन्हें ढूंढ रही वो दिख नहीं रहे। ये जो डीजे लगा है ना, कसम खुदा की कह रहा हूं, कोई ये कह दे कि ये डीजे सिर्फ मिलाद के लिए लगा है, मैं यहीं से उतर जाऊंगा। कोई सिर्फ ये कह दे कि सिर्फ मिलाद के लिए लगा है, आगे मैं इस पर तफसीर ही न करूंगा। आप सभी पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि मुझसे और क्या होने वाला है। मकसद सिर्फ दिखावा है कि ये डीजे सिर्फ मिलाद के लिए लगा है। अब आए थोड़ा सा और करीब हो जाएं। हजरत मोहतरम, हम लड़कियों से इतना सवाल कर देते हैं कि लड़के से पूछते नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वही पूछ लिया जाए, वही पूछ लिया जाए कि मेरे लाल, तू कलमा पढ़ना जानता है या नहीं? तू कलमा पढ़ना जानता है तो बता, जरा पढ़ के तो सुना दे। तेरे ससुर आए हैं, तेरे साले आए हैं, तुझे देखने वाले आए हैं, तू उन्हें जरा अदब से सलाम करके तो बता दे। हजरत मोहतरम, मेरे साथ ऐसा मामला कई बार हो गया है। लड़के को खूब समझा के भेजा गया, बाबू मेहमान आए हैं, अदब से बाबू मेहमान आए हैं, इज्जत से। लड़का जो ही पहुंचा है और तड़प के कहता है अस्सलामु अलैकुम, मारे खुशी के लड़का तो फूले नहीं समा रहा है कि आज तो हमने दे डाला, सबको सलाम कर दिया। मगर उलमा जो है बैठ के कह रहे हैं, बाबू बैठो जरा, तुम नीचे बैठो। बैठाने के बाद पूछा, जूही आलिम साहब ने कहा कि बाबू तुम जो सलाम किए हो ना, ये छोटी सीन से है, बड़ी शीन से नहीं है। अब लड़का इतना गुस्सा हो गया, इतना लाल पीला हो जाता है लड़का कि आपको यही मेरी तंज करनी थी, यही नुक्स निगारी करनी थी। मैं पूछना चाहता हूँ, वो आलिम गलत नहीं है, अगर वो समझा रहा है तो गलत नहीं है, मगर गलती हमारी है। वो भी कहाँ पे? वो यहाँ पे कि उसी आलिम के पास जब बच्चा छोटा था तब भेजते कि बच्चा सीख के आ कि सलाम कैसे किया जाता है, जवाब कैसे दिया जाता है।